آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کمزور بندے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو جا کے کسی سے پنگا لیتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں سے چپیڑیں کھا کے واپس آتا ہے، واپس آ کے چودھری صاحب کو بتا رہا ہوتا ہے یا کسی اور کو طاقتور بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب جدوں وہ مینوں چپیڑا مار رہا سی نا گالاں تانوں کڈ رہا سی۔ حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ شہباز گل کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن اس موقع کے اوپر نہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نظر آئی، نہ ہی بڑی تعداد میں کارکن۔ اور جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اس وقت بلاول صاحب کی، زرداری صاحب کی، مولانا صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اسفندیار ولی صاحب کی، ان سب کی جمہوریت بہترین انتقام لے بھی رہی ہے۔ کس سے لے رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان کو کھڑا کر دیا جائے فوج کے سامنے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا جمہوری اتحاد حکومت کر رہا ہے، وہ اپنی جمہوریت کے ذریعے بہترین انتقام لے رہا ہے۔ کس سے انتقام لے رہا ہے؟ صحافیوں سے انتقام لے رہا ہے، میڈیا سے انتقام لے رہا ہے، آزادی رائے سے انتقام لے رہا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب، اس وقت حکومت کی خواہش ہے کہ فوج اور عمران خان کی لڑائی کروا دی جائے۔ اب یہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے بیانات بھی آئے ہیں، میڈیا میں بھی کوٹ ہوئے ہیں، میری بھی بات ہوئی ہے ایک دو رہنماؤں سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ فوج کو تحریک انصاف سے لڑا دیا جائے، تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ تحریک انصاف اداروں کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، تاکہ فوج اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی رد عمل آئے اور تحریک انصاف کے اوپر مقدمے بنائے جائیں، نام رکھا جائے فوج کا، کاروائیاں ہم خود کرتے رہیں، سب کچھ کاروائی ڈالتے رہیں، اور تاکہ عوام کو یہ تاثر دے سکیں جناب یہ دیکھیں یہ جو جماعت ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہ فوج کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے۔ اب یہ بیانیہ ہے تحریک انصاف کا، لیکن اگر آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں تو ہو بھی یہ رہا ہے۔ جو بھی بات ہوتی ہے اس کو ایک دم سے یہ تاثر دینے کی حکومت کوشش کرتی ہے، جناب اداروں پہ حملہ ہو گیا، اداروں کے خلاف بات کر دی۔ شہباز گل نے جو بیان دیا ہے اس سے فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا، لیکن جو گزشتہ 3 سالوں سے حکومت کے جو رہنما ہیں وہ بیانات دے رہے تھے اس سے کسی کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا۔ وہ کس قسم کے بیانات تھے؟ یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کہ شہباز گل نے ایک بات کی ہے، ایک بیان دیا، لیکن اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں آپ اس وقت کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں جس کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں، اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جو شہباز گل کا کیس ہے وہ وزارت دفاع کے سپرد کر دیا جائے، وزارت دفاع جو ہے کورٹ مارشل کرے شہباز گل کا۔ کون سی وزارت دفاع؟ جس کے اس وقت وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے فوج ہے اس نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت اور خون نوچ لیا ہے، یہ آج تک کوئی جنگ نہیں جیتے۔ ان کے جتنے بھی بیانات ہیں میں دوبارہ یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل جو ہے اس کا کیس ان کے حوالے کر دیا جائے، اس وزارت کے انڈر کر دیا جائے۔ باقی میاں صاحب کے جو بیانات ہیں، دیگر لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں، وہ سارے بیانات آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھے ہوں گے اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بار بار شیئر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ اس وقت تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی عمران خان اینٹی فوج ہے، اس کی جماعت اینٹی فوج ہے۔ اب یہ کر رہے کیوں ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کمزور بندے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو جا کے کسی سے پنگا لیتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں سے چپیڑیں کھا کے واپس آتا ہے، واپس آ کے چودھری صاحب کو بتا رہا ہوتا ہے یا کسی اور کو طاقتور بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب جدوں وہ مینوں چپیڑا مار رہا سی نا گالاں تانوں کڈ رہا سی، مطلب کہ جب وہ مجھے مار رہا تھا نا تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی گالیاں نکال رہا تھا۔ تو اب انہوں نے کھائی ہیں ریسنٹلی چپیڑیں الیکشنز کے اندر، پنجاب کے الیکشنز کے اندر سب نے مل کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، دیکھ لیا کیا ہوا، عبرت ناک شکست ہوئی۔ اب 9 حلقوں میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب میں آ گیا ہوں، آ جاؤ میرے سامنے، کرو کھڑا مولانا کو، اسفندیار ولی کو، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، کسی کو بھی کھڑا کرو، میں آ رہا ہوں خود میدان میں۔ اب یہ میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اب یہ بھاگ کے جا کے طاقتور لوگوں کو بتاتے ہیں جناب جدوں سانو چپیڑاں پیاریاں سن نا گالاں تانوں کڈ رہے سنو۔
मतलब हमें जब चपेड़े मार रहा था खान तो आपको वो गालियां निकाल रहा था। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, असद उमर साहब ने भी बात की, और दीगर रहनुमा भी ये बात कर चुके हैं कि तासुर ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस वक्त फौज के साथ है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज के साथ नहीं है, उनका मुकाबला इस हुकूमत के साथ है। फौज एक कौमी इदारा है, कल खान की हुकूमत होगी तो फौज उसके अंडर होगी, आज इनकी हुकूमत है तो इसके अंडर है। और इस वक्त जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, शहबाज गिल को उठाना, दीगर लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो ये हुकूमत कर रही है, इस हुकूमत के मातहत इदारे कर रहे हैं। और वही हमारी दूसरी स्टोरी है शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब को आज अदालत में पेश किया गया, लेकिन उस मौके के ऊपर हमें ना पीटीआई की कोई सीनियर क़यादत नजर आई, ना ही हमें पीटीआई के कारकुन नजर आए। अब इसमें लगता है ऐसे है कि पीटीआई प्रेशर के अंदर आ गई। अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिनकी अभी हुकूमतें हैं, सिंध में भी हुकूमत है हमारे इत्तेहादियों की, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, उनकी बलूचिस्तान में भी एक तरह से हुकूमत है, उसके साथ साथ उनकी वफाक में भी हुकूमत है। ये जो सारा इत्तेहाद है, इसके जो लीडर्स हैं, जब वो अदालतों में भी पेश होते थे तो अदालतों से बाहर निकल के जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगाते थे, ISI के सरबराह के ऊपर इल्जामात लगाते थे। यहां पे तो एक बात हुई है टीवी के ऊपर, ना अभी उसके ऊपर मुकदमा चला है, ना कोई चीज साबित हुई है, ना किसी फौजी जनरल का नाम लिया गया है, ना किसी फौजी अफसर का नाम लिया गया है। उसके बावजूद जो है, जिस किस्म का प्रेशर पीटीआई ने अपने ऊपर ले लिया है कि आज उनकी जमात के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। किसके चीफ ऑफ स्टाफ हैं? चेयरमैन के। किस चेयरमैन के? जिसकी 4 वफाकी इकाइयों में हुकूमतें हैं, 2 सूबों में हुकूमतें हैं, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान जो आपका अबूरी सूबा है उसमें भी हुकूमत है, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत है। वो जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसकी KPK में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, जिसना मैंने बताया, हुकूमतें हैं, उसके लीडर को पेश किया गया अदालत में, तो ना कोई मरकजी क़यादत पेश हुई, ना कारकुन आए। इस हद तक प्रेशर में आ गए। इमरान खान के घर के सामने से, बिल्कुल करीब से, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को गाड़ी का शीशा तोड़ के उठाया गया और उठा के जनाब वो ले गए। और जमात क्या कह रही है? जिस लीडर से पूछो पीटीआई के, वो कहता है जनाब हमें तो नहीं पता गिल साहब को किधर रखा है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आपका, अगर आपको इस्लामाबाद में ये हालत है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, इस तरफ भी आपकी हुकूमत, KPK में भी, उस तरफ पंजाब में भी आपकी हुकूमत, और आपके रहनुमाओं के साथ ये हो रहा है और आपको पता ही नहीं, और आप इतने प्रेशर में आ गए कि आप अदालत में ही नहीं पेश हुए अपने रहनुमा की सपोर्ट में। और जो दूसरे हैं वो फौज के खिलाफ दुश्मन तराजी भी करते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं, और फिर अदालतों से बाहर निकल के वहां पे खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे दोबारा फौज के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये हालत है इस वक्त पीटीआई की कि वो इतने प्रेशर में आ गए हैं। आज खान साहब ने सुना है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अभी तक तो नहीं कोई हुई चीज, ना ही कोई खबर मेरे सामने है। हो सकता है उसमें वो कोई लायामल तैयार करें, कोई चीज बताएं, लेकिन इस वक्त तक तो यही लगता है कि पीटीआई जो है वो कोई ज्यादा ही प्रेशर लेगी है। शहबाज गिल ने एक बयान दिया, अदालत में उसका केस चलेगा। अगर वो ये कहते हैं कि मेरा ये मकसद नहीं था, ना किसी की दिल आजारी, ना ही मैंने इदारे के खिलाफ बयान दिया, और शहबाज गिल के बयान में, और जो वजीर दिफा ने बयानात दिए हैं, मौलाना ने बयानात दिए हैं, मरियम बीबी जो फौज के हवाले से बात करती रही हैं, इदारों के हवाले से, ISI चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं, क्या वो हमारे सामने नहीं है? उन लोगों ने पीटीआई को प्रेशर में ले आए, वो लोग कि जनाब आपके लीडर ने ये बयान दिया है शहबाज गिल ने, तो वो उनके पास इतनी इखलाकी जुर्रत। और पीटीआई जिसकी हर जगह पे हुकूमत है, वो जनाब चुप करके बैठे हुए, ना आगे से कोई बोल रहे, ना कोई बयानियां बना रहे, और एकदम से जनाब प्रेशर में आ गए। पर एनीवे हो सकता है कि आज वो कोई रिस्पांस अपना दें, आगे से कुछ बताएं। अच्छा, तीसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सुना है ना आपने, ये अक्सर बिलावल साहब भी कहते हैं। इस वक्त ये जो जमहूरियत है ये बेहतरीन इंतकाम ले भी रही है। किससे ले रही है? ये मीडिया से ले रही है, सहाफियों से ले रही है। इसलिए कि इस वक्त जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, या फिर जो सहाफियों के साथ हो रहा है, आपको पता है शहबाज गिल को तो 2 दिन के रिमांड पे दे दिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी जिस किस्म की तस्वीरें लीक की गई हैं वो भी आपने देखी होंगी कि वो जेल में कभी उसमें हवालात में नीचे बैठे हुए। उसके साथ साथ सहाफियों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। अरशद शरीफ साहब भी आज मुल्क से चले गए हैं। उसके अहमद यूसुफ साहब को रात को घर से उठा लिया गया, जो हेड हैं न्यूज़ चैनल ARY के। उसके साथ साथ जो सलमान इकबाल साहब हैं ARY के ओनर, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, और जिस तरीके से अहमद यूसुफ को रात को घर से उठाया गया, ये किसी
हमारे अस्करी इदारे ने नहीं उठाया। ये उनका नाम जो लेके जो लोग इस पे बातें कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये इस हुकूमत ने उठाया, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है सारी कार्रवाइयां। ये बिलावल साहब की सिंध हुकूमत ने रात को जाके अमाद यूसुफ को घर से उठाया है, और जिस तरीके से उठाया है और जिस तरह के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, अरशद शरीफ के ऊपर भी केस हुआ है, दीगर एंकर्स वगैरह के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि उनके ऊपर भी केसेस हो रहे हैं। तो जो भी ये कार्रवाइयां कर रही है, ये इन सब की जमहूरी हुकूमत कर रही है। ये है जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम जो आज़ादी राय से लिया जा रहा है, सहाफ़ियों से लिया जा रहा है, और हर उस शख्स से लिया जा रहा है जो सवाल करता है। अच्छा, अब इनकी कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि खौफ का माहौल बनाना है, कोई सवाल ना करे, कोई क्वेश्चन ना करे, कोई पूछे ना, ये तासुर देना कि भाई तुम सवाल कर रहे हो तो तुम इदारों के खिलाफ हो। और इस सारी गेम के अंदर वो जो हमारे दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, काबिल एहतराम दोस्त आज़ादी राय की बात करते थे, आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, वो तो अभी मुतालबे कर रहे हैं कि शहबाज गिल को तो जनाब आप उसको खुदा ना खास्ता सूली पे चढ़ा दें, और हर वो बंदा जो कोई सवाल करता है उसको पकड़ लें, बंद कर दें, चैनल बंद कर दें। मतलब इस तरह अगर आप चैनल बंद करेंगे और इस तरीके से आप सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कल किसी और के खिलाफ भी होगी, परसों किसी और के खिलाफ भी होगी, एक दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अगेन जो भी ये कर रहा है, जिस दर से भी हुक्म आ रहा है, ये हुकूमत की तरफ से आ रहा है, ये हुकूमत कर रही है। इस हुकूमत में जो जो शख्सियात शामिल हैं, चाहे कोई सहाफ़ी वहां पे मशीर बन गया है, चाहे कोई दीगर वज़रा हैं, या फिर कोई रज़ा रुबानी साहब जैसी काबिल एहतराम शख्सियत है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, सेनेट में खड़े होकर जमहूरी इक़्तिदार की बातें करती है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब जैसी कोई शख्सियत है, असफंदियार वली साहब जैसी कोई शख्सियत है, या फिर जरदारी साहब हैं, या बिलावल साहब हैं, या जो भी इनके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते हैं। ये इन सब की जमहूरियत का निचोड़ है जो आपको नजर आ रहा है, जो ARY के साथ हो रहा है, उसकी इंतजामिया के साथ हो रहा है, दीगर सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। जिस तरीके से शहबाज गिल को उठाया गया, लोगों को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, ये सब कुछ जो है ना इनकी मर्जी से हो रहा है, और ये इनकी जमहूरियत का निचोड़ है जो हम देख रहे हैं। इसमें आप किसी और को जिम्मेदार मत ठहराएं, ये हुकूमत जिम्मेदार है, इनकी मशीनरी यूज हो रही है। अगर इमरान रियाज को शहर शहर घुमाया गया तो पंजाब पुलिस ने घुमाया, उस वक्त इनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, कोई उनको कोई और इदारा उठा के इधर आगे पीछे नहीं फिरता रहा। लेकिन ये जो भी हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए कम है, चाहे कोई भी इदारा हो। कभी आप जियो के खिलाफ कार्रवाई करें, या डॉन के खिलाफ कार्रवाई करें, या ARY के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई करें, या किसी भी सियासतदान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई की जाए, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। पर एनीवे, ये हमारे यहाँ नई जमहूरियत है, और मैं इसको जमहूरियत इसलिए कहता हूँ कि सारी जमहूरी जमातों ने मिल के कायम की है, तो ये सबसे बड़ी जमहूरियत है। सबसे बड़ी जमहूरियत का सबसे बड़ा जमहूरी शो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।